Good morning, all the students. Today's topic is the conducting tissues of the heart. It's related topics of the previous lecture. In the previous lecture, I was discussing about the internal structure of the heart and to the what is the blood flows or the pathways of the blood. So that today's topic is that to the how the procedure for the blood flow or the circulation of the blood, which type of the mechanism is adopted or performed by the heart. So we have just mentioned that to the heart is participate to the flow of the blood, circulation of the blood through their pumping mechanism, and the pumping mechanism will perform on the basis of the cardiac muscles, because cardiac muscles is which have to the ability of to the contraction and the dilation process. As you know that very well, in the previous lectures we are also discussed about to the heart is composed of to the cardiac muscles, and these are the cardiac muscles as you mentioned to the quality of to the dilation and the contraction. That is the rhythmic contraction and the relaxation process is going on, and with the help of the blood which are flows through the respective aortas from to the ventricles after the contraction. For the contraction, which type, what kinds of the procedures which are going on, the different kinds conducting muscles are found in the cardiac muscles. Conducting tissues are found into the cardiac muscles, and that's to the participate or the being circulated to the blood, which perform these kinds of cardiac muscles. And the cardiac muscles, particularly cardiac tissues, which participate to the initiation and the conduction of to the heartbeat, and through the heartbeat to the blood, through the heartbeat the contraction and the dilation process is going on, and once the contraction, the total amount of the blood which goes to their ventricles, and to the further the contraction process takes place both of the ventricles, and that's to the total amount of the blood which goes to their respective aortas, that is the pulmonary aorta, and to the cardiaco-systemic aortas respectively, which belong to the deoxygenated and the oxygenated blood. So today's topic is the conducting tissue of the heart. So that we will go now to the description of to the what is the conducting tissue. आज के चैप्टर में हम हार्ट से ही रिलेटेड कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि हार्ट में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है, या फिर ये कहें कि कंट्रैक्शन और डायलेशन की प्रक्रिया होती है, वो किसके माध्यम से होगी, किसके द्वारा होगी, या ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जिस पाथ से वो गुजरता है, वो किसके द्वारा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर राइज होता है, वो प्रेशर किसके माध्यम से होता है. तो हम आपको बता दें
कि जो कार्डियक मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट होती है और फिर बाद में रिलैक्स होती है, और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कंडक्टिंग टिश्यूज होती है कार्डियक मसल्स में उसके द्वारा होती है। तो हम आपको आज डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन कौन से कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं जो कि कार्डियक हार्ट बीट या एक कार्डियक मसल्स को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और इसी रिदम के साथ में वो थ्रू आउट द लाइफ अपना कार्य करती हैं और ब्लड को पंप के माध्यम से हर बॉडी पार्ट्स में भेजती रहती हैं और रिसीव करती रहती है। तो देखते हैं, ये हमारा एक ग्राफिक्स है, डायग्राम है, जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो कार्डियक टिश्यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो क्या काम करती हैं, क्या फंक्शन अडॉप्ट करती हैं, और जिसके माध्यम से ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, ब्लड फ्लो करती है। तो आइए हम देखते हैं, जस्ट let us see here through the diagram which we will better understand about to the conducting tissues and their functions. So conducting tissues, the initiation conducting tissue of the heart, cardiac muscle consists of the certain specialized structure which are responsible for the initiation and the transmission of the cardiac muscles at a higher. Cardiac muscles, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कार्डियक मसल से पूरा का पूरा हार्ट का निर्माण हुआ है, हार्ट बना है, तो उसमें कुछ स्पेशल प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यूज पाई जाती हैं जो कि इनिशिएशन एंड कंडक्शन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द कार्डियक मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ द कार्डियक, इनिशिएशन ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो जहां पर वो रिस्पॉन्सिबल होती है इनिशिएशन और ट्रांसमिशन के लिए। कार्डियक मसल्स में जो ये जो स्पेशलाइज्ड फीचर्स होती है, स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनकी मदद से जो ब्लड होता है वो फ्लो करेगा। तो उसमें क्या होगा, वो इनिशिएशन भी करेंगी और जो है ट्रांसमिशन भी करेंगी। व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द, यहाँ पर वेव निकलती है, ट्रांसमिशन ऑफ द वेव ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में कार्डियक मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए वेव ऑफ द कंट्रैक्शन निकलती है, और इसी वेव ऑफ द कंट्रैक्शन के माध्यम से जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स होती है वो क्या करती है, कंट्रैक्ट होती है, और कंट्रैक्शन से ही प्रेशर राइज होता है, और प्रेशर राइज होने पे वो जो ब्लड फ्लो है वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू द एट्रिया टू वेंट्रिकल एंड देन द वेंट्रिकल टू द देयर रिस्पेक्टिव एवार्टास, सो दैट द ब्लड विच आर फ्लोइंग through this channel with the openings is to the bicuspid and tricuspid valves, with the guarded by to the tricuspid and bicuspid valve, and after that to the same through the semilunar valve of the both side of the ventricles, that's to the once again to the pressure rises into the ventricles, and that's to the total amount of the blood which are going into the each respective aortas, and that's to the aortas further and further to the change into the atria, and then to the small atria, and after that atriole goes into the first of all to the right side is related to the oxygenation of to the blood, and to the left side of the ventricles which are associated to the their aorta cardiaco-systemic aorta is related to the flow of the blood each of the body where are the oxidation and the chemical reaction is takes place, and the chemical reaction is a very important for that to the any kinds of the functioning and any kinds of the procedures, and on the behalf of this procedure, that is the animal which are going into the survival, that is animals which are alive. So that we are just go now to the cardiac muscles which are have to the special type of the features or the structures which are responsible for the initiation and the transmission of the cardiac muscles. रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएशन के लिए और ट्रांसमिशन के लिए। जैसा मैंने बताया क्या ट्रांसमिट होगा, वेव ट्रांसमिट होगा। वेव किसके लिए, कंट्रैक्शन के लिए। वो कहाँ से जनरेट होगा, इसी के लिए। तो यही हमको समझना है, एट हायर रेट
These specialized cardiac tissues are collectively known as the conducting tissues or the junctional tissues of the heart. ये जो कलेक्टिवली अगर उसको टर्म दिया जाए, एक नाम दिया जाए कि ये जो अलग अलग कंडक्टिंग टिश्यूज पाई जाती हैं, वो उसको कलेक्ट किया जाए, एक बार में उसको नाम दिया जाए, तो वो कंडक्टिंग टिश्यूज, क्योंकि क्या है, पूरे हार्ट का कंडक्शन, संवहन करने की जो प्रक्रिया है इन्हीं के माध्यम से होती है, इन्हीं के द्वारा होती है, इन्हीं के थ्रू होगी। तो और दूसरी चीज है कि वो क्या है, हार्ट में, हार्ट के कार्डियक मसल्स में ये कार्डियक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा इनिशिएशन और ट्रांसमिशन की प्रक्रिया होगी। वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। जस्ट लुक एट हियर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आर इंक्लूड एज अ कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द हार्ट। फर्स्ट इज साइनोएट्रियल नोड और साइनो ऑरिकुलर नोड। यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि साइनोएट्रियल बोल सकते हैं आप या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड। एट्रियल मैंने पहले भी बताया इन द प्रीवियस लेक्चर, वी आर आल्सो मेंशन दैट टू द ऑरिकल इज आल्सो कॉल्ड टू द एट्रियम, सो दैट टू द वेयर आर द कम्युनिकेशन ऑफ द communication of the SA node, so that this is called to the sinoatrial node or the sinoauricular node, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको SA node भी बोला जाता है। और यही प्रिंसिपल चीफ और जनरेटिंग टिश्यूज है, जनरेट करेगा वेव ऑफ द इम्पल्सिस को, वेव ऑफ द ट्रांसमिशन को और वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को, जिसके माध्यम से पहली बार जो कंट्रैक्शन की प्रक्रिया जो होगी वो पूरे हार्ट में फैलेगी और उसी के माध्यम से पूरा का पूरा जो ब्लड होगा या वो हमारे बॉडी पार्ट में जाएगा या बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट में एक बार फिर से आता है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं, उसको हम उसी तरफ फॉलो करते हैं। सेकंड में एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल जहाँ पे एसोसिएट करती है, वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टिश्यूज पाई जा रही है, उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है, या फिर वो दूसरे नाम से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। तीसरा है बंडल ऑफिस, उससे एसोसिएट करता है नीचे की तरफ। फिर ये जो बंडल ऑफिस है वो ब्रांचेज है, लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और पूरे वेंट्रिकल्स पे चली जाती है। और वहाँ पे पूरे वेंट्रिकल में पहुँचने के लिए एक और चीज़ उससे एसोसिएट करती है जिसको पर्किंजे फाइबर बोलते हैं। तो आपने देखा देयर आर द 5 कंडक्टिंग टिश्यूज which are found in the cardiac muscles of the heart, which initiate and regulate or the transmitted to the wave of the contraction from to the SA node for the contraction and the relaxation process of the cardiac muscles of the heart on the behalf of cardiac muscles of the these types of the cardiac tissues which are found. The blood which are flowing from to the their atria to the ventricle and the ventricle to the their respective aortas respectively, deoxygenated and the oxygenated blood which are concerned with the both are the atria and the ventricles, right and to the left, right auricle and to the ventricle which are belong to the deoxygenated blood, left auricle and the ventricle is related to the more oxygenated blood, so that to the both sides of the heart is going into the at the same time are the rhythmic contraction and the relaxation, and so that to the of the this result the blood which are goes to the another side or another part of the body are the once again in the heart. So conducting tissues of the heart, there are the 5 kinds of the tissues, cardiac muscles, which consist of the certain specialized structures. These are the specialized structures, these are the tissues which are performing for to the contraction road. तो मेरे कहने का मतलब यहाँ था कि ये 5 प्रकार के विशेष जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनके माध्यम से जो हार्ट होता है वो कंट्रैक्ट होता है। और जो हार्ट का जो पार्ट है आप पहले भी जान चुके हैं, हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है किसी मैमल्स में और एबीज में। तो अगर हम एनिमल्स की प्रॉपर हायर एनिमल्स की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में
ह्यूमन बींग्स को ले तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं, और दोनों के जो 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल जो हमने लास्ट चैप्टर में बताया था कि वो डिवाइड होती हैं। ऑर्किल जो है इंटर एट्रियल सेप्टम से डिवाइड होती है, वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइड होती है, और एट्रिया और वेंट्रिकल एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइड होती है। तो देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ द सेप्टम्स विच आर प्रेजेंट एंड बाइफर्केटेड टू द एट्रिया टू एट्रिया, वेंट्रिकल टू वेंट्रिकल एंड एट्रिया टू वेंट्रिकल. So that now go to the diagram of the heart which are indicating in here there are the 5 kinds of the special features, special structures which participate, which is responsible, which help in the process of the contraction and the relaxation, which means that to the going into the heartbeat, and the heartbeat which are have to the 2 kinds of the sounds after the closing of to the tricuspid and bicuspid wall and to the semilunar wall, love and dub. And on the behalf of the heartbeat, that is the one cardiac cycle is completed. So that to the heartbeat, in the last chapter we are just mentioned that to the rhythmic contraction and relaxation of to the cardiac muscles of the heart is called to the heartbeat. Heartbeat रिदमिक रूप से, कंटिन्यूअस रूप से, रिदम के साथ में जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कार्डियक मसल्स ऑफ द हार्ट का होता है तो उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं, और उसके माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का फ्लो होता है। तो उसी 5 चैप्टर के 5 स्पेशल फीचर के माध्यम से हम समझते हैं, डायग्राम के साथ माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे होता है, या हाउ द प्रोसीजर विच आर गोइंग ऑन, हाउ मेक टू द पास, हाउ टू द प्रोसीजर विच आर completed for to the blood circulation through the diagrams, and to the there are the five special features which are found for that to the what is the location and the situation of to the these 5 first of all we attach to the SA node, sinoatrial node or the sinoauricular node. तो sinoatrial node बोलिए चाहे sinoauricular node बोलिए। तो देखिए ये एक हमने ग्राफिक्स के माध्यम से डायग्राम, रफली डायग्राम बनाया है, उसके माध्यम से देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये दोनों एट्रिया हैं, दोनों वेंट्रिकल हैं। अब साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड में ये डिवाइड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के माध्यम से आप पहले से भी अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि यहाँ पे इसका सिचुएशन क्या था। अब हमको केवल कंडक्टिंग टिश्यू दिखाना है, तो देखिए ये ऐसे नोड यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है एबी नोड, ये जो लाइन है इंटरएट्रियल रीजन का, ये बंडल ऑफ हिस। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने डॉट किया है और ये वेंट्रिकल पार्ट में जा रही है, बाइफर्केट हो रही है बोथ साइड, तो इसको ब्रांचेज ऑफ द बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। और इस ब्रांचेज ऑफ द बंडल ऑफ हिस पे देखिए ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जिसको परकिंजे फाइबर बोलते हैं। अब आपको हमें समझना है कि जो इनिशिएशन और ट्रांसमिशन होता है वेव कंट्रैक्शन ऑफ वेव का, वो कहाँ से होता है और कैसे होता है, और उसका रेगुलेशन या कंडक्शन किसके द्वारा किया जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं ऐसे नोड। तो ऐसे नोड को मैंने पहले भी बता दिया, ये दिस इज द प्लेस ऑन टू द राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल में ये प्लेस ऑन हुआ है और कह सकते हैं अपर मोस्ट पार्ट है, और इस किस रीजन में है, ये एट्रिया है। तो ये जो सेप्टम है इंटर एट्रियल सेप्टम में ये जो ऐसे नोड है यहाँ पे उपस्थित होता है। एबी नोड का जो लोकेशन है वो ये आपका जो इंटर एट्रियल, ये जो कह सकते हैं कि इंटर एट्रियल और जो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है उस पर ये उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब हम और ये थोड़ा सा नियर द कोरोनरी साइनस होता है, उसके पास होता है, लेकिन सबसे पहले हम ऐसे नोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले ऐसे नोड चीफ है कंडक्टिंग टिश्यूज है, स्पेशल स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल्स का, जहाँ से इनिशिएशन और कंडक्शन जनरेशन होता है वेव ऑफ द कंट्रक्शन।
वेव ऑफ द कंट्रैक्शन के लिए जो वहाँ से इम्पल्सेस निकलेंगी, वेव निकलेंगी, वो ऐसे नोड से निकलती है। और ऐसे नोड की जो खोज है वो कीथ एंड फ्लैक ने की थी। कीथ एंड फ्लैक विच आर discovered to the a particular structure which are named as to the SA node into the 1907. This is the initiation and to the transmission of the wave of the contraction. SA node is generated to the wave of the contraction and on the basis of this is called to the इस बेस पे कारण इसको पेस मेकर बोला जाता है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज द SA नोड। SA नोड बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है या फिर स्ट्रक्चर होता है कंडक्टिंग टिश्यूज में का, क्योंकि यहीं से जनरेशन होता है। देखिए हमने एरो के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द थ्रू द arrows, that is the wave of the contraction which are spread all over the atria, which means it means that to the both are the atria which controlled by the wave of the contraction which is generated by the SA node. SA node के द्वारा जो वेव ऑफ द कंट्रैक्शन जनरेट होता है वो दोनों एट्रिया पर फैलता है। क्योंकि ये वेव है इसलिए एरो के माध्यम से हमने दिखाया है कि पूरी एट्रिया इसके नियंत्रण में होती है, क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है, वेव्स निकलती हैं और वेव के माध्यम से ये जनरेट होती है। क्योंकि ये क्या है, ये मैंने कहा वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को जनरेट करती है, तो जनरेट करने के कारण इसको पेस मेकर बोला जाता है। पेसिंग करती है लगातार कंटिन्यूस में, और वेव ऑफ द कंट्रैक्शन जो जनरेट होती है वो आप समझ लीजिए कितना होगा। वेव ऑफ द कंट्रैक्शन जो जनरेट होता है वो 70 to 80 होता है। 70 to 80 70 से 80 बार ये जो है जनरेट होती है, और इसलिए इसको जो है ऐसे नोड कहा जाता है। ऐसे पेस मेकर 70 to 80 ऐसे नोड। तो इसलिए आपने देखा कि द नोड इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स द रेट ऑफ द contraction of the cardiac muscles. It is known as the pacemaker of the heart. It generates to the normal cardiac impulse at the rate to the 70 to 80 per minute in the adult. एडल्ट के केस में 70 से 80 बार पर मिनट ये जो है वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को जनरेट करती है, जिसमें कार्डियक मसल जो है कंट्रैक्ट होती है और ब्लड का जो है फ्लो होता है। लेकिन केवल ऐसे नोड के वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को यहीं तक फैला देने से हार्ट का जो है हार्ट का नियंत्रण या फिर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। उसके लिए उसकी सपोर्टिंग बॉडीज जो होती हैं या फिर जो और अदर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो दूसरे पे जो इंटरएट्रियल ये लाइनिंग है या सेप्टम है जो कोरोनरी साइनस के पास में होती है, वहीं पे एबी नोड, यहाँ पे देखिए एबी नोड को क्या बोला जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये एट्रिया में है और ये इसका एसोसिएशन वेंट्रिकल से जाके जुड़ा है बंडल ऑफ इसके द्वारा। तो ये जो प्लेस है ये कहा जाता है एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होती है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वेव ऑफ द कंट्रैक्शन विच आर जनरेटेड बाय द एसए नोड एंड रिसीव्स बाय द एबी नोड and which send to the wave of the contraction into the all the parts of the ventricle through the bundle of hills and which are the bifurcated into the both side। तो मतलब कि वेव ऑफ द कंट्रैक्शन जो जनरेट होती है ऐसे नोड के द्वारा, जिसको हम पेस मेकर बोल चुके हैं, जिसको हम नोडल रिदम बोलते हैं, और ये 70 से 80 बार जो है प्रति मिनट वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को जनरेट करती है, वो एबी नोड के द्वारा रिसीव की जाती है। क्योंकि बिकॉज जो कंट्रैक्शन वेंट्रिकल का होगा वो इसी ऐसे नोड के द्वारा जनरेटेड वेव्स के द्वारा ही होगा, इसलिए ये यहाँ पे रिसीव करके ये वेंट्रिकल पार्ट्स में भेजती है।
थ्रू द बंडल ऑफ हिस बाइफर्केटेड टू द बोथ साइड, दोनों साइड में बंडल ऑफ हिस का बाइफर्केशन होके, और पूरे एट्रिया में फैलने के लिए ये यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर से इस प्रकार के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को परकिंजे फाइबर बोला जाता है, परकिंजे फाइबर्स। तो परकिंजे फाइबर्स के माध्यम से पूरा का पूरा वेंट्रिकल जो होता है वो क्या किया जाता है, कंट्रैक्शन में जाता है। तो आप समझे कि ऐसे नोड के बाद एबी नोड भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को जनरेट रिसीव करता है और रिसीव करके वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है, जिससे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगी। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट किसका है, बंडल ऑफ हिस का है जो, और उसके ब्रांचेस का है, और ब्रांचेस के साथ में एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है, एबी जो नोड है वो केंट ने इसको खोज किया था 1892 ईस्वी में, 1892, दैट इज अ केंट विच आर डिस्क्राइब टू द स्पेशल फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ द एबी नोड विच रिसीव टू द wave of the contraction generated by the SA node, the part of the ventricles through the bundle of his, yeah, via to the bundle of his, and that to the bundle of his। तो यहाँ से ये जनरेट हुआ। एक बात और कि when the SA node which are not initiating to the impulse wave of the contraction, so that these are also generated to the wave of the contraction but slower rate, जबकि ये जो है ऐसे नोड जब प्रॉपर ढंग से, या ऐसे नोड जो है जब उस कंडीशन में होता है और वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को जनरेट नहीं कर पाता, उस समय ये एबी नोड भी वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को जनरेट करता है, लेकिन उससे स्लोअर रेट करता है, वो अबाउट टू द 60 पर मिनट के हिसाब से करने लगता है, लेकिन कंट्रोल उसका कम हो जाता है, क्योंकि तो इसके कारण इसको रिवर्स पेसमेकर, रिजर्व पेसमेकर बोलते हैं, रिजर्व पेसमेकर बोला जाता है। पेसमेकर है आपका ऐसे नोड, लेकिन जब ये फेल करेगा तो उसके स्थान पे ये वर्किंग करने लगेगा, मतलब वेव ऑफ द कंट्रैक्शन ये जनरेट करने लगेगा, जिसके कारण इसको रिजर्व पेसमेकर बोला जाता है यहाँ पे। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो कंट्रोल है, इनिशिएशन एंड द कंडक्शन अप टू द wave of the contraction through the SA node which are received by the AB node in the ventricles part through the bundle of his. If the SA node which are fail, and which means that to the it not performing well, not generating to the wave of the contraction, so that this time to the AB node is also generated to the wave of the contraction, but is a slower rate, and so that on the basis of these functioning is called to the reserve pacemaker। तो इसको रिजर्व पेसमेकर के नाम से जाना जाता है और उसको माना जाता है, जिसके आधार पे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हर जो फीचर्स है उसका अपना इम्पोर्टेंस है। आगे चलते हैं, देखिए बंडल ऑफ हिस एक फीचर और है जो कि एसोसिएशन करता है एबी नोड से आपके वेंट्रिकल पार्ट में जो ब्रांचेज होती है या परकिंजे फाइबर होती है उसको एसोसिएट करती है। तो बंडल ऑफ हिस को हिस ने खोज किया था 1893 ईस्वी में, 1893 हिस विच आर डिस्क्राइब टू द फाइबर्स ऑफ द बंडल फाइबर्स। तो बंडल के फॉर्म में एक जो फाइबर्स होती थी या ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती थी वो वहाँ पे पाई जाती थी, कहाँ पे, ये बेस पे एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है यहाँ पे आगे चल के वहाँ पे, और उसका नाम दिया बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस जो होता है वो एबी नोड के द्वारा जो वेव ऑफ द कंट्रैक्शन रिसीव किया जाता है, जनरेट किया जाता है, उसको सेंड करता है, भेजता है कहाँ पे, वेंट्रिकल्स पार्ट में बाइफर्केशन के बाद। तो यही चल के आगे बाइफर्केट हो जाती है लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो यहाँ पे इसमें भी कुछ एसोसिएशन है, जबकि एबी नोड भी अगर फेल कर जाए, बोथ ऑफ द SA नोड एंड एबी नोड विच आर फेल्स, द बंडल ऑफ हिस इज आल्सो जनरेटेड टू द वेव ऑफ द कंट्रैक्शन, बट इज द क्वाइट स्लो टू द 36 पर मिनट। तो 36
टाइम्स पर मिनट काम करने लगता है, लेकिन लगातार देखिए जनरेशन कम होता जा रहा है, इससे कि हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ रही है, जिससे कि मृत होने की संभावना लगातार बनती है। मतलब यूं कहें कि दूसरे शब्दों में कोलैप्स होता जा रहा है, और कोलैप्स से उसका जो वर्क है, उसका जो फंक्शन है वो बिगड़ रहा है। आइए देखते हैं फिर आगे चल के ये जो है ब्रांचेज ऑफ द बंडल, ये देखें, ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ी हैं, ब्रांच हो गई हैं। अब ब्रांचेज में देखिए ये इस प्रकार के फीचर्स हैं जिसको परकिंजे फाइबर बोलते हैं। परकिंजे ने इसकी खोज की है, इसलिए उनके नाम पे इसको परकिंजे फाइबर बोला जाता है। और इनका क्या काम है, ये पूरे एट्रिया पे जो वेव ऑफ द कंट्रैक्शन एसए नोड या एबी नोड के द्वारा जनरेट किया गया, खासकर एसए नोड के द्वारा, वो यहाँ तक पहुँचाती हैं, जिससे कि एक अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग होती रहे। हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, पंपिंग मैकेनिज्म, ब्लड का फ्लो करना, और ब्लड का जो फ्लो होगा वो किसके आधार पे होगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के आधार पे होगा। कंट्रैक्शन किसका हो रहा है, कार्डियक मसल्स का हो रहा है, लेकिन कार्डियक मसल्स जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कैसे आ जा रही हैं, हाउ इज द पॉसिबल टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ टू द कार्डियक मसल्स व्हेन द एसए नोड which are generated by to the wave of the contraction and तो एसए नोड के द्वारा जो वेव ऑफ द कंट्रैक्शन जनरेट किया जाता है उसके माध्यम से जो कार्डियक मसल्स होती है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जाती है। तो एसए नोड जो है हमारा पेस मेकर है, वहीं से इनिशियल, वहीं से ट्रांसमिशन, वहीं से कंडक्शन की प्रक्रिया होती है। नॉर्मल जो जब हम कंट्रोल की बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट होगा वो जो ब्लड का, जैसे मैंने कहा कि हार्ट क्या करता है, ब्लड का फ्लो करेगा। ब्लड का फ्लो किससे होगा, उसके पंपिंग मैकेनिज्म से होगा। पंपिंग मैकेनिज्म कैसे होगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका होगा, कार्डियक मसल्स से होगा। कार्डियक मसल्स अगर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जा रही हैं तो किसके माध्यम से जा रही हैं, उसके स्पेशल फीचर्स के माध्यम से जा रहे हैं। स्पेशल फीचर कौन कौन से होते हैं, 5 प्रकार के हैं, एबी नोड, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफिस, परकिंजे फाइबर, ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफिस। और अब ये इन 5 के आधार पे एसए नोड जो है वो हमारा पेस मेकर कहा जाता है। ये इनिशिएशन एंड जनरेशन करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को जनरेट करेगा। तो कार्डियक जो मसल्स होती हैं वो इस एसए नोड के द्वारा जनरेटेड जो वेव्स हैं उसको पूरे बॉडी पार्ट में, हार्ट के पूरे रीजन पे पहुंचाती हैं, जिससे कंट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। और जैसे ही ये रिलैक्स में जाती हैं तो उसको रिलैक्सेशन हो जाता है। तो अब इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कार्डियक मसल्स हार्ट का है वो जब कंट्रैक्ट होगा तो फर्स्टली जो एट्रिया, बोथ आर द एट्रिया, दोनों एट्रिया में जो ब्लड होगा वो उस अपने वेंट्रिकल में भेजेगा, और फिर वेंट्रिकल एक बार फिर ये जनरेटेड जो वेव्स हैं जो एसए नोड के द्वारा एबी नोड के माध्यम से, ब्रांचेज ऑफ द बंडल एबी बंडल वाया टू बंडल ऑफिस के माध्यम से परकिंजे फाइबर की सहायता से वो पूरे वेंट्रिकल पे पहुंचता है। तो वेव ऑफ द कंट्रैक्शन पूरे वेंट्रिकल पे पहुंच जाती है, और वेंट्रिकल पहुंचते ही वो अपने रिस्पेक्टिव एबाटाज में ब्लड को भेज देती है, सेंड कर देती हैं। तो आइए समझते हैं, देखिए व्हेन द टाइम, अब हम मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो एसए नोड है, एबी नोड है, वो बंडल ऑफिस है, वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, और हम इसको ये भी बताएंगे कि इसका नियंत्रण कौन करता है। देखिए एसए नोड जब जनरेट करेगा वेव ऑफ द इम्पल्सेस को, तो ये थ्रू द एरोज हमने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द सिचुएशन व्हेन द एसए नोड इज जनरेटेड टू द वेव ऑफ द कंट्रैक्शन, एंड दैट इज फर्स्टली रिसीव्ड बाय टू द एबी नोड विच आर प्रेजेंट इन टू द or atrioventricular septum, and that's to the these are the waves is goes at the region of to the ventricle through the bundle of his associated to the Purkinje fiber। तो यहाँ से अब हम आपको बता दें, जैसे ही कंट्रैक्शन होगा, हार्टबीट की जब हमने बात की थी, हार्टबीट को बताया था कि हार्टबीट क्या होता है। हार्टबीट में रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस है। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका हो रहा है, कार्डियक मसल्स ऑफ द हार्ट का हो रहा है, कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट। हम यहाँ पे समझते हैं
इस जो कार्डियक मसल्स है ये पूरा कार्डियक मसल्स है, और इस कार्डियक मसल्स में ये जो सारे फीचर्स हैं, तो ये सारे फीचर्स को का नियंत्रक कौन है? एसए नोड। लेकिन हम आपको बता दें एसए नोड भी नियंत्रित होता है, अभी हम बताएंगे कंट्रोल या फिर रेगुलेशन अप टू द कार्डियक मसल्स ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट के का जो कार्डियक मसल्स है उसका नियंत्रक कौन होता है? यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि वहाँ पे वो नर्वस कंट्रोल होता है और हार्मोनल कंट्रोल होता है, मतलब नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होगा और हार्मोन से कंट्रोल होगा। कैसे होगा ये हम बताते हैं अभी। तो ऐसे नोड के द्वारा जैसे ही पूरा का पूरा जो ब्लड होता है, जैसे ही आपके बोथ ऑफ द एट्रिया, जैसा कि मैंने कल इन द प्रीवियस लेक्चर वी जस्ट मेंशन दैट थ्रू द pulmonary veins in the left side of the atria and to the superior and inferior and the coronary sinus far to the deoxygenated blood in the right auricle. Right auricle और left auricle दोनों जो है साइमल्टेनियस प्रोसेस में दोनों तरफ से एक रिदम के साथ में प्रक्रिया होती है। तो एसए नोड उस समय जबकि दोनों तरफ ब्लड आ चुका होता है रिलैक्सेशन के टाइम में क्या होना है? अब यहाँ पे हम ओपनिंग्स बता देते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बोथ ऑफ द साइड। यहाँ पे अब ये दोनों एट्रिया में जो ब्लड है वो क्या होगा? अब उसके वेंट्रिकल पार्ट में जाना है, तो वेंट्रिकल पार्ट में तभी जाएगा जबकि एसए नोड जो कि यहाँ पे राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है ये इनिशिएट होगा। ये किसी के द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम के द्वारा या हार्मोनल सिस्टम के द्वारा, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये या फिर इसका लोकल कंट्रोल भी होता है, ये खुद अपने आप में ऑटोनोमस टाइप का जो है एक फीचर्स है जो कि वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को जनरेट करेगा। जैसे ही दोनों एट्रिया में ब्लड आ चुका है, अब ये ब्लड उसके वेंट्रिकल में जाना है, तो ये तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वेव ऑफ द कंट्रैक्शन इनिशिएट नहीं होगा। इनिशिएशन एंड ट्रांसमिशन, इनिशिएशन भी करेगा और ट्रांसमिशन भी करेगा। तो देखिए पहले इनिशिएट किया कि दोनों एट्रिया में वेव ऑफ द कंट्रैक्शन फैल गया। व्हेन आर द एट्रिया विच आर बोथ आर द एट्रिया विच आर हैव टू द वेव ऑफ द कंट्रैक्शन आर द स्ट्रीप ऑफ द वेव ऑफ द कंट्रैक्शन, तो दोनों तरफ पहुंच गया। और जैसे ही वेव ऑफ द कंट्रैक्शन दोनों तरफ पहुंचा तो ये क्या कर जाती है? कंट्रैक्ट कर जाती है। द कार्डियक मसल्स विच आर द कंट्रैक्टेड एंड दैट टू द इन द मेडिकल साइंस इज कॉल्ड टू द सिस्टोल। तो ये सिस्टोल बोला जाता है, ये कंट्रैक्ट होती है और कंट्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ से पूरा का पूरा जो ब्लड होता है ये इसके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है, राइट एंड लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल में। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है, और ये जैसे ही ब्लड पूरा आएगा यहाँ की ये जो फ्लैप होती है ये बंद हो जाती है, और जैसे ही बंद होती है तो उसको लब बोलते हैं, LUBB। दैट इज द साउंड विच आर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग टू द क्लोज्ड और टू द बोथ आर द गार्ड टू द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल इज द लब। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ, कि क्लोज इसलिए होता है कि बैकवर्ड फ्लो ना हो, जो वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है वो फिर से एट्रिया में ना जाने पाए, इसलिए यहाँ पे ये बंद हो जाता है। लेकिन उसी समय एट दैट सेम टाइम व्हेन द वेव ऑफ द कंट्रैक्शन स्वीप टू द बोथ ऑफ द एट्रिया, दैट इज द वेव इज आल्सो received by the AB node which are present into that area through the bundle of his after that it is going into the ventricle is the bifurcated or separated into the left and the right side which are have to the also to the Purkinje fiber। तो Purkinje फाइबर के मदद से जो बंडल ऑफ हिस है और ये भी नोड है जो कि रिसीव कर चुका है वेव ऑफ द कंट्रैक्शन को वाया टू, इसके माध्यम से पूरा का पूरा वेव ऑफ द कंट्रैक्शन एक बार फिर अब एट्रिया के बजाय वेंट्रिकल पे आ जाएगा, क्योंकि ये सिकुड़ चुकी है और ये कंट्रैक्ट हो चुकी है, कंट्रैक्शन के में पूरा ब्लड आ चुका है। जैसे ही ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में आता है तो प्रेशर अराइज होने लगता है, प्रेशर वेंट्रिकल्स के वाल पे ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो क्या होगी, वो इस वेव ऑफ द कंट्रैक्शन के प्रभाव से, इम्पैक्ट से ये फिर से कंट्रैक्शन में जाएगी थ्रू द पर्किंजे फाइबर, और ये दूसरा सेमी ल्यूनर वाल दोनों तरफ होता है जिसको मैंने कल बताया था, पल्मोनरी एबाटास एंड द कैरेटिको सिस्टेमिक एबाटास। इसके माध्यम से ये पैसेज बनाते हुए जो कंट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का हो रहा है, आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स टोटल अमाउंट of the blood is of the both atria which going to the opening or to the semineural valve into their respective aortas, अपने aortas में चली जाती हैं। एक ये राइट साइड जो
जाती है वो पल्मोनरी अवाटास के माध्यम से लंग्स में चली जाती है, और आफ्टर द ऑक्सीजनेशन एक बार फिर पल्मोनरी वेन के माध्यम से राइट ऑर्किल में आती है, ठीक है। लेकिन उसी समय ये देखिए ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ये सेमिल्यूनर जो कार्डिकोसिस्टेमिक अवाटास बोला जा रहा है, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग अवाटास के माध्यम से अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ब्लड, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, वहाँ पे चली जाती हैं। तो कहने का मतलब है सुपीरियर इन्फीरियर यहाँ पे ब्लड को उस पार्ट से लेके आती है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग जो होती है वो ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं। तो इस प्रकार से देखिए कंट्रैक्शन यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर हुआ। अब इस कंट्रैक्शन होने के बाद तुरंत डायलेशन की प्रक्रिया होगी, जो वेव ऑफ द कंट्रैक्शन के कारण जो है एट्रिया और वेंट्रिकल सिकुड़ गई थी, जो वो फैल जाएगी, या फिर यूं कहें विच आर गोइंग इनटू द नॉर्मल पोजीशन, and that to the once again blood which come in the both are the atria, A to the deoxygenated blood and the oxygenated blood। तो इस wave of the contraction जो कि SA node, AB node, bundle of his branches of the bundle of his and Purkinje fiber के माध्यम से पूरा का पूरा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसको हार्ट बीट बोला जाता है। और हमने कल बताया था कि ये हार्ट बीट के आधार पे कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? साइक्लिक साइकिल है, एक साइक्लिक है कि एक हार्ट बीट के खत्म होने से, जैसे यहाँ से एक हार्ट बीट खत्म हुआ और पूरा दूसरा हार्ट बीट यहाँ फिर खत्म हो जाए, द कंप्लीशन ऑफ द वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट, दैट इज द कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट के खत्म होने से दूसरे हार्ट बीट के खत्म होने तक की जो प्रक्रिया होती है, जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो कार्डियक साइकिल के अंतर्गत आती हैं। और दैट्स द कार्डियक साइकिल विच आर टेक्स अबाउट टू द 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। And in the 0.8 second is the further processes which are going on, and that's too ये 0.8 सेकेंड जो है, अगर हम एट्रियल सिस्टोल की बात करें और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें, तो एट्रियल सिस्टोल जो हमारा होता है, एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड होता है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो 0.5 होता है। मतलब कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो फर्दर जो कंट्रैक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं, उसके लिए वो टाइम को टेक करता है 0.3 और 0.4 और 0.5, तो दोनों को मिला के 0.8 होता है। तो एक पूरी कार्डियक साइकिल होती है। कार्डियक साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक इवेंट है जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, एक कंट्रैक्शन होता है, जहाँ पे एट्रिया टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू देयर एवाटास में ब्लड फ्लो करता है, टोटल अमाउंट में जाता है, और इसलिए इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसलिए हार्ट बीट को जानना हमने बोला था कि बहुत जरूरी है। हार्ट बीट मैंने बताया कि रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स ऑफ द हार्ट, दिस इज कॉल्ड टू द हार्ट बीट, एंड द वन हार्ट बीट इज कंप्लीटेड टू the next, that is the cardiac cycle, and the cardiac cycle which are completed to the 0.8 second, in the 0.8 second to the atrial systole and to the ventricular systole. Atrial systole which are takes to about to the 0.3 second, and to the ventricular systole is a 0.5 second, so that to the all the processes which are going on। अब हम आपको बता दें कि ये तो था कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, कंडक्टिंग टिश्यू के माध्यम से होती है। लेकिन हमको ये जानना पड़ेगा कि ये कंडक्टिंग टिश्यू किसके माध्यम से नियंत्रित होती है। तो हम अगर रेगुलेशन की बात करें, इसके कंट्रोल की बात करें, रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट बीट के रेगुलेशन की बात करें, तो ऐसे नोड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तीन विशेष बातें हैं इसमें। एक नर्वस कंट्रोल बोला जाता है, एक हार्मोनल कंट्रोल बोला जाता है, एक लोकल कंट्रोल बोला जाता है। लोकल कंट्रोल के अंतर्गत जो ऐसे नोड होती है वो खुद ऑटोनोमस बॉडीज के रूप में अपने द्वारा खुद ही जनरेशन करती है और सारे मैकेनिज्म को नियंत्रित करती है। लेकिन जो नर्वस कंट्रोल होता है और हार्मोनल कंट्रोल है, ये पिक्यूलियर होता है, अलग अलग होता है। जैसे नर्वस कंट्रोल की बात करें तो ये ब्रेन के द्वारा होता है। ब्रेन जो हिंड ब्रेन होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन which are have to the medulla oblongata, and that's to the medulla oblongata which have to the both sides cardio inhibitory and cardio excitatory।
मतलब क्या? कार्डियो जो हार्ट को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, कार्डियो इनिबिटरी और कार्डियो एक्साइटेटरी। जब हमारा हार्ट बीट का जो रेट है वो बढ़ेगा तो वो कार्डियो एक्साइटेटरी से होता है, और जब उसको नियंत्रित किया जाएगा, स्लो किया जाएगा, वो इनिबिटरी के अंतर्गत आता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा में 2 पॉइंट्स होते हैं, ये देखिए 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर हम ये मेडुला ऑब्लांगेटा है तो 2 तरफ से, एक तरफ ये, एक तरफ ये, और डायरेक्टली ये से नोड से जुड़ा रहता है। तो एक तरफ कार्डियो एक्साइटेटरी और कार्डियो इनिबिटरी, एक तरफ से पैरासिम्पथेटिक नर्व्स, दूसरी तरफ से सिम्पथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पथेटिक जो नर्व्स होती है वो एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन करती है, और सिम्पथेटिक जो नर्व्स होती है वो सिम्पैथेटिन का सिक्रीशन करती है। एसिटिल कोलिन क्या करती है? इनिबिटरी होती है, और जो सिम्पथेटिन होती है वो एक्साइटेटरी होती है। तो आपने देखा कि सिम्पथेटिन और यहाँ पे पैरासिम्पथेटिन होता है, पैरासिम्पथेटिन। यहाँ से मैंने कहा कि एसिटिल कोलिन निकलेगा, एसिटिल कोलिन, और यहाँ से सिम्पथेटिन, सिम्पथेटिन। सिम्पथेटिन क्या होता है? इसको इधर से नियंत्रित करता है, और ये इसको इधर से, एक एक्साइटेटरी है, एक इनिबिटरी है। तो इस प्रकार से नर्वस कंट्रोल के माध्यम से जो कार्डियो इनिबिटरी और कार्डियो एक्साइटेटरी जो सेंटर्स हैं वो इस नर्व्स के माध्यम से एसिटिल कोलिन और सिम्पथेटिन का सिक्रीशन करके हार्ट बीट को हमेशा कंट्रोल रखते हैं। उसी प्रकार से जब हम हार्मोनल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हार्मोन्स आते हैं, इपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। उसी को दूसरी में शब्दों में बोला जाता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये क्या होते हैं? ये भी हार्मोन हार्ट बीट को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जिसके माध्यम से हार्ट बीट हमारा कंट्रोल होता रहता है। हम आपको ये बता दें, जब हम ड्यूरिंग टू द हार्ड वर्क, ड्यूरिंग टू द रनिंग, देयर आर द हार्ट बीट विच आर गोइंग इनटू द इंक्रीजमेंट, एंड ड्यूरिंग टू द स्लीप द हार्ट बीट विच आर गोज टू द बिलो। जब हम हार्ड वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस समय हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, और जब हम सोते हैं तो हार्ट बीट कम हो जाता है। तो इसलिए उसका सारा का सारा नियंत्रण वो नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल से होता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये आपको बताया कि कंडक्टिंग टिश्यूज हार्ट की क्या होती हैं, जो कार्डियक मसल्स में पाई जाती हैं, और वो कौन कौन सी होती है, उनका मैकेनिज्म कैसा होता है, वो ब्लड को कैसे प्रोपेल करती हैं, कैसे फॉलो करती हैं, कैसे पाथ बनाती हैं, और किसके माध्यम से वेव ऑफ द कंट्रैक्शन निकलता है, पेस मेकर किसको बोलते हैं, रिजर्व पेस मेकर किसको बोलते हैं, कहाँ से होता है। तो एक्चुअल जो डेसिकेशन, तो और उसके बाद हमने कंट्रोल बताया, रेगुलेशन बताया कि ऐसे नोड को कितने प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है हमारे बॉडी में। हमने बताया नर्वस कंट्रोल से और हार्मोनल कंट्रोल से। बोथ ऑफ द सिस्टम विच आर वेल परफॉर्म ड्यूरिंग in the regulation up to the heartbeat during to the wave of the contraction which are spread into the both atria and to the ventricles, and that to perform to the all the functions. So today's topic is very interesting, and I hope to you are better understand. You are if you have to the any problems for to the particular topic, so that you the comment in the box, and that to the solve their problems for me. Thank you.